जिस पै करूं बिनती, मेरा दुख सुख तुझ ही पास। बाणी गुरु गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कहे सेवक जन मानै, प्रतख गुरु निस्तारे। धन वाहिगुरु साहिब जी। श्लोक महला पहला। विस्माद नाद विस्माद वेद, विस्माद जी विस्माद भेद, विस्माद रूप विस्माद रंग, विस्माद नांगे फिरें जंत, विस्माद पौण विस्माद पानी, विस्माद अग्नि खेडें विडाणी, विस्माद धरती विस्माद खाणी, विस्माद साध लगे प्राणी, विस्माद संयोग विस्माद विजोग, विस्माद भुख विस्माद भोग, विस्माद सिफत विस्माद साला, विस्माद उजड़ विस्माद रा, विस्माद नेड़े विस्माद दूर, विस्माद देखे हाजरा हजूर, वेख विडाण रहया विस्माद, नानक बुझण पूरे भाग, वेख विडाण रहया विस्माद, नानक बुझण पूरे भाग। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग धन धन शब्द गुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह जी महाराज, तिन्हां दी मुबारक हजूरी दे अंदर शामां वेले दे इन्हां पावन दीवानां दे विच हाज़रियां भर रहे अति सत्कारयोग सतसंगी जनों, सतगुरां जी की अपार बख्शिश किरपा रहमत के सदका असी सतगुरु जी के पावन दरबार अंदर सत्कारयोग भाई साहब होरां जी के जथे पासों सतगुरु जी की इलाही बाणी का कीर्तन श्रवण कर रहे सी। हुण कुछ समा प्राप्त होया है आप जी दे नाल सतगुरु जी की बाणी के विचार साझे करन दा। चल रही लड़ीवार विचार के अंदर असी इस पावन श्लोक की विचार पिछलेरे दीवाना विच भी आप सरबत संगत नाल साझे करन दा यतन कीता सी। सतगुरु धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह महाराज जी ने इस पावन शब्द विच
ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਵਿਸਮਾਦ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ, ਵਿਸਮਾਦ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਵਾਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਵਿਸਮਾਦ। ਫਿਰ ਉਸ ਵਿਸਮਾਦ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਕੀ ਵਿਸਮਾਦ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਅੰਤ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਰੰਭ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਦ, ਵਿਸਮਾਦ ਵੇਦ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਨਾਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਵਾਜ਼, ਤੇ ਵੇਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰ ਵੇਦ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨੇ, ਰਿਗਵੇਦ, ਸਾਮਵੇਦ, ਯਜੁਰਵੇਦ ਤੇ ਅਥਰਵਵੇਦ। ਚਾਰ ਵੇਦ ਨੇ ਤੇ ਚਾਰਾਂ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਇਹ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਵਿਸਮਾਦ ਇਹਨਾਂ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਵਿਸਮਾਦ ਇਹਨਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਅੰਤਮ ਨਿਰਣਾ ਇਹਨਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੇਦ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੀ ਕ੍ਰਿਤ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੇਦ ਨੇ ਇਹ ਰੱਬ ਨੇ ਆਪ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਲਿਖੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨੌਤ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੀਏ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖ ਨੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਥ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਈਓ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੋਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪੂਜਾ ਅਕਾਲ ਕੀ, ਪਰਚਾ ਸ਼ਬਦ ਕਾ ਤੇ ਦੀਦਾਰ ਖਾਲਸੇ ਕਾ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਅਕਾਲ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ, ਧੜਾ ਧੜ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਈਸਾਈ ਮਤ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲਹਿਰਾਂ ਚੱਲੀਆਂ। ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਸੀ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਲਹਿਰ ਤੇ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਸੀ ਨਾਮਧਾਰੀ ਲਹਿਰ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਲਹਿਰਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਜੁਲਾਈ 1873 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਪੱਖ ਹੈ ਜਿਸ ਪੱਖ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਿਸਾਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਵੇਦਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸੌਖਿਆਂ ਸਮਝ ਲੱਗ ਸਕੇ। 1873 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ। 4 ਬੱਚੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਚਲੋ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਦੀ ਇੱਕ ਵੇਦਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਇਹਨਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਅੱਜ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੈਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਗਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਹਰਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ।
पर अज असीं इहनूं जिहड़ी रंगत है थोड़ी थोड़ी होर देनी शुरू कर दित्ती। अज जिहड़े उत्थे लोग सन उन्होंने कहना शुरू कर दिता भी नहीं, इस करके नहीं जयकारा गजाया जाता भी गुरु रामदास सच्चे पातशाह महाराज के वेले की मर्यादा इत्थे चली आ रही है, इस करके इत्थे जयकारा नहीं गजाया जाता। पर तुसीं वेखो जदों सोदर की बाणी पढ़ी जाती है, उहदे विच चौथे पातशाह के शब्द भी पढ़े जाते हैं, पंजवें पातशाह के शब्द भी पढ़े जाते हैं। कीर्तन जदों हुंदा है, गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह महाराज जी के शब्दों का भी उत्थे कीर्तन किया जाता है। सो खैर जिहड़ी मैं बेनती कर रहा सा, महाराजा रणजीत सिंह ने इन्हां धार्मिक स्थानां के नां ते बहुत वड्डियां वड्डियां जगीरां लाईआं। ननकाणा साहब के नां ते 1500 एकड़ जमीन ननकाणा साहब बाल लीला गुरुद्वारा है जिहड़ा गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह महाराज जी का, उहदे नां ते जमीन लवाई सी। उहदे चों अद्धी जमीन राय बलार ने लवाई सी उस गुरुद्वारा साहब के नाम ते, ते उस तो बाद अद्धी जमीन महाराजा रणजीत सिंह के राज समय महाराजे ने आप लाई सी। जदों गुरुद्वारियां के नाम ते जमीनां लगियां ते गुरुद्वारियां नूं पैसा खुला आउण लग पिया, सिखां नूं घर घाट छड्ड के जाना पिया ते गुरुद्वारियां ते महंतां ते उदासियां का कब्जा हो गया। महंत उदासी भी सारे माड़े नहीं सन, उन्हां दे विच चंगे भी सन, रहणी वाले भी सन, पर उन्हां दे विच कई वो भी सन जिहड़े अगे जाके जदों पीढ़ी दर पीढ़ी ये परंपरा चलती गई तो उन्होंने मन दे विच लालच आया ते मन के लालच ने उन्होंने मानाइयां करने वास्ते मजबूर किया। साका ननकाणा साडे सामने है। महंत नरैणू ने गुरुद्वारा साहब दे विच कुछ गुंडे पाल रखे सन, जिहड़े गुंडे उत्थे आउण जाण वाली संगत नूं लगातार जिहड़ा सी ओह परेशान कर रहे सन। जदों 4 विद्यार्थी दरबार साहब की धरती ते आए कड़ाह प्रशाद की देग लैके, ते जिहड़े उत्थे काबज पुजारी सन उन्होंने ये कह के मना कर दिता भी तुहाडी देग दरबार साहब दे विच प्रवान नहीं हो सकती क्योंकि तुसी नीवीं जात दे हो, तुहाडी देग इत्थे प्रवान नहीं हो सकती। वो चारे विद्यार्थी दरबार साहब तो बाहर गए, उन्होंने ईसाई मत नूं धारण कर लिया क्योंकि उन्हां दिनां दे विच दरबार साहब के दुआले दुआले अंग्रेज राज ने उतों के जोड़े मुखी सन उन्होंने चर्चा उसारनियां शुरू कर दित्तियां भी सिखां नूं किसी ना किसी तरीके नाल सिक्खी तो तोड़िया जाए। उन्होंने लगता सी भी जे सिक्खी वाली चंगियाड़ी इन्हां दे मन दे विच किते धुखदी रही तो किते फिर अपने राज की गल ही ना कर लग पैण, जिहड़ा अज उत्थे सुरंगां दा रौला पै रहा है ना दरबार साहब की धरती ते। ये जिहड़ियां सुरंगां सन असल विच इन्हां दा कुछ खास महत्व सी। जिहड़ा तुसीं सोशल मीडिया ते अज चर्चा वेखदे हो, दरबार साहब के दुआले दुआले इतिहास विच मिलदा भी 86 बुंगे सन। उन्हां बुंगियां दे विच वख-वख संप्रदा के ज्ञानी पढ़ते सन। हुण कवि संतोख सिंह ने ग्रंथ लिखिया है गुरप्रताप सूरज ग्रंथ, ते कवि संतोख सिंह के जिहड़े विद्यादाते सन संत सिंह उन्हां बुंगियां दे विच रहिंदे सन, मतलब ये टकसालां सन। महाराजा रणजीत सिंह दे वेले एजुकेशन सिस्टम इन्ना वधिया सी भी हर एक गुरुद्वारे दे नाल एक स्कूल सी, एक धर्मशाला सी, एक पाठशाला सी जिथे आण के बच्चे दुनियावी अखरां की विद्या नूं प्राप्त करते सन। पर जदों अंग्रेज़ां ने कब्जा किया तो उन्होंने दुआले दुआले तो बुंगे ढा के ते दरबार साहब के दुआले दुआले चर्चा नूं सारना शुरू कर दिता भी लोग धड़ाधड़ ईसाईयत वाले पासे आ जाण ते सानूं राज करना इत्थे सौखा होवे। एक गल हमेशा ध्यान में रखियो, जदों कोई भी राजा राज करता है ना उन्होंने धर्म के नाँ ते राज करना बड़ा सौखा दिसदा है। जदों बाबर वर्गे इत्थे आए तो उन्होंने अपने प्रचारक नाल ही इत्थे लिआंदे ते उन्होंने ये आख्या भी तुसीं जिन्ने भी भारत देश विच रहण वाले लोग ने इन्हां नूं मुसलमान बना दिओ। जे मुसलमान बन गए असीं अपने मानाइयां करांगे ते इन्हां दे कन्नी ये गल पावांगे भी जे तुसीं साडे राज नूं कुछ करन दा यतन कीता ते इस्लामी राज जां इस्लामी धर्म नूं खतरा पैदा हो जाएगा। अज भी तो इदां ही हो रहा है। अज की जिहड़ी हुकूमत है वो राज किदां करदी है, उन्हें सिर्फ दिमाग दे विच एक सोच पाई है। हिंदूत्व की सोच कह कह के लोगों को अंदरों टुंबिया जाता है। हिंदूत्व की सोच कह कह के लोगों के दिमाग दे विच ये चीज़ां भरियां जांदियां ने, करदे भावें अपनियां मानाइयां ने, पर हिंदूत्व के नाँ ते नारा दे के हर वार वोटां आपदे पक्ष दे विच पवा जांदे ने। राज करदी धिर दी हमेशा कोशिश रही है भी लोगों को धर्म के नाँ ते लड़ा के इस धरती पर राज किया जाए। सो खैर जिहड़ी मैं बेनती कर रहा सा, वो 4 विद्यार्थी जो बाहर आए ना दरबार साहब तो चारे के चारे ईसाई बन गए। जदों चारे ईसाई बन गए
ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਕਦਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ। ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਸੁਹਿਰਦ ਸਿੱਖ ਸਨ ਉਹ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ, ਜਿਹੜੇ 4 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਈਸਾਈ ਮਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਈਸਾਈ ਬਣ ਕੇ ਪੈਂਟ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਪਾ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਉੱਚੀ ਹੈ ਕਿ ਨੀਵੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਤ ਪੁੱਛੀ ਗਈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਈਸਾਈ ਮਤ ਵਾਲੇ ਈਸਾਈਅਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਗਏ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛੀ। ਇਹ ਚਰਚਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕਦਮ ਚੱਲੀ। ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਨੇ 1873 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਦੇ 3 ਮੋਢੀ ਸਨ, ਰਾਜਾ ਬਿਕਰਮਾਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਪੂਰਥਲਾ, ਬਾਬਾ ਖੇਮ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ। ਇਹਨਾਂ 3 ਗੁਰਮੁਖ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਨੇਊ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪੁਜਾਰੀ ਸਨ, ਮੰਤ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣਾ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਸ਼ਵਾਵਾਂ ਦਾ ਨਾਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹਿੰਦੂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਅਖਬਾਰ ਕੱਢਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਖਾਲਸਾ ਅਖਬਾਰ। ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸੱਜਣ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਖੜਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ। ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ। ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਇਹ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਭਾਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਣ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਣਿਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਬੋਲਦੇ ਸਨ ਨਾ ਤੇ ਲੋਕ ਪਿੱਛੋਂ ਖੜ ਖੜ ਕੇ ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਆਖਦੇ ਸਨ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਵਾਸਤੇ ਮਰ ਮਿਟਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ। ਇੰਨਾ ਭਾਵਪੂਰਤ ਲੈਕਚਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲ ਕੇ ਆਣ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦਾ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸ਼ਰਧਾ ਰਾਮ ਫਿਲੌਰੀ, ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨੇ ਊਟ ਪਟਾਂਗ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਟੁਚਰਾਂ ਡਾਈਆਂ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਹਿਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹਿਸਕ੍ਰਿਤੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜਗ ਅਰਜ ਪੇਸ਼ ਗੁਫਤਮ ਦਰਗੋਸ਼ ਕੁਨ ਕਰਤਾਰ ਹੱਕਾ ਕਬੀਰ ਕਰੀਮ ਤੂੰ ਬੇਐਬ ਪਰਵਤਗਾਰ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਫਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਕੱਢੇ ਤੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ, ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ, ਟੁਚਰਾਂ ਡਾਈਆਂ। ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਾਈਆਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧ ਘਾਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਸੁਹਿਰਦ ਸਿੱਖ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ ਵੀ ਇਸ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ੰਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਗਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਇੱਕ ਸੂਰਮਾ ਮਰਦ ਦਲੇਰ ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਉੱਠਿਆ, ਪੰਥ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਇਸ ਸ਼ਰਧਾ ਰਾਮ ਫਿਲੌਰੀ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਛਪਦੀ ਹੈ, ਸਾਧੂ ਦਇਆਨੰਦ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸੰਵਾਦ। ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਨੇ ਛਾਪੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, 20-30 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਿਓ। ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਲਿਖੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਤ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੁਚਰਾਂ ਡਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਫਿਰ ਟੁਚਰਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਟੁਚਰਾਂ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਡਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਗਏ
उन्हें आख्या पंडित जी तुसीं ये दसो वेद रब की करेत है? पंडित कहता जी बिल्कुल, वेद जिहड़े ने ये रब की करेत ने। ज्ञानी दित सिंह जी ने अगला सवाल किया, जे वेद रब की करेत ने तो रब का स्वरूप की है, रब किदां दा है? उन्हें आख्या रब का स्वरूप कोई बंदे वर्गा नहीं, रब जिहड़ा है वो समय के प्रभाव तो रहत है। रब जिहड़ा है ये बंदे की पकड़ दे विच नहीं आ सकता। ज्ञानी दित सिंह जी थोड़ा जिहा अपनी जुबान तो मुस्कुराए तो मुस्कुरा के कहन लगे, कहते पंडित जी एक गल दसो, जे रब बंदे की शक्ल का नहीं, जे रब बंदे की पकड़ विच नहीं आ सकता तो वेदां नूं लिखण दे वास्ते तां कलम चाहिदी है, तो कलम नूं फड़न दे वास्ते हथ चाहिए ने। जे हथ नहीं, जे कलम नहीं तो कलम ते हाथ तो बिना दसो वेद किदां लिखे गए? हुण शरधा राम दे कोल, साधु दयानंद दे कोल इन्हां चीज़ां दा जवाब नहीं। वो भरी सभा दे विच निरुत्तर हो गया। एक नहीं, दो नहीं, 3 वार ज्ञानी दित सिंह जी ने उस पंडित नूं विचार चर्चा दे विच हराया। एक होर उन्होंने बड़ी कमाल की गल आखी, उन्हें आख्या जिहड़ी बोली है 3 तरह की हुंदी है। एक बोली हुंदी है मध्यमा, बैखरी ते बसंती। 3 तरह की बोली जिहड़ी प्रचलित है। एक बोली बंदे की वो है जिस थां तो ये आवाज़ पैदा होंदी है। दूजी बोली वो है जिहड़ी साडे गल तक आउंदी है। जिवें असीं कई बार ये शब्द नहीं वरतते भी मैं तैनूं ये गल कहण लगा सा, मेरे गल तक आ गई पर मैं रुक गया। ये दूजी तरह की बोली है। तीजी तरह की बोली ये है जिहड़ी मूँह दे राहीं प्रगट हुंदी है ते कोई किसी दूजे बंदे दे कन्नां तक आवाज़ पहुँचती है। ज्ञानी दित सिंह जी ने पंडित नूं आख्या भी बोली 3 तरह की हुंदी है ते 3 तरह की बोली पैदा होंदी है इस मनुखा शरीर नूं मिलण करके। जे रब दे कोल ये मनुखा शरीर है ही नहीं तो तुसीं दसो जिहड़े वेद रब की करेत किदां होए? तुसीं दसो वेद फिर रब ने किदां लिखे होए? 3 वार उस पंडित नूं भरी सभा दे विच ज्ञानी दित सिंह जी ने विचार चर्चा दे विच हराया। ये साडे सिखां दा माण है। पर दुख की गल साध संगत पता की है? ज्ञानी दित सिंह जी के नाँ ते अज तुसीं किसी पंजाब दे विच किसी सड़क का नाँ, किसी कच्चे पहे का नाँ, किसी लाइब्रेरी का नाँ भी विखा दो जे ज्ञानी दित सिंह के नाम ते होवे ते ये दुख की गल है। तो जिन्हों 3 वार विचार चर्चा दे विच 3 वार विचार चर्चा दे विच हराया, जिस पंडित नूं अज उन्हां दे वड्डे वड्डे स्कूल भी बने हुए ने, उन्हां दे नाम ते वड्डियां वड्डियां यूनीवर्सिटियां भी बणियां होईयां ने, ते जिन्ने लुधियाणे दे विच DMC वर्गे वड्डे वड्डे हॉस्पिटल ने ये सारे उन्हां दे नाम ते बने हुए ने। साडे सिखां कोल की है? अज साडी कौम दा अरबां खरबां रुपईयां दा सरमाया व्यर्थ दे विच जा रहा है। इस करके जा रहा है असीं अपने सिखां दे वास्ते वधिया स्कूल अजे तक तैयार नहीं कर सके जिथे साडे सिख बच्चे फ्री दे विच एजुकेशन हासिल कर सकण। असीं अपने परिवार दे वास्ते एक वधिया हॉस्पिटल नहीं तैयार कर सके जिथे सिखां दा इलाज मुफ्त विच कीता जा सके। ये त्रासदी है साडी। अज उन्होंने अपना प्रचार किया, हॉस्पिटल उन्होंने तैयार किए, स्कूल उन्होंने तैयार किए, रावां दे नां अज उन्हां दे नामां तो बने ने जिन्होंने ज्ञानी दित सिंह ने 3 वार विचार चर्चा दे विच हराया। जिहड़े पंजाब दीआं नीआं नूं, जिहड़े पंजाब दीआं जड़ां नूं टक लाउण दे वास्ते इत्थे आए सन ते ज्ञानी दित सिंह वर्गे सूरमिਆਂ ने उन्होंने पंजाब की धरती तो आख्या गुरां दा पंजाब है, ये गुरां दे नां ते वसदा है। तुसीं इस गुरां दे पंजाब दे विच आण के अपनी मत का प्रचार नहीं कर सकते। ये साडे इतिहास का मान सी। ये चीज़ां गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह महाराज के इतिहास नूं पढ़िए। उन्हां समयां दे विच इंग्लैंड तो चल के एक पादरी इत्थे पंजाब दे विच आया। उन्हें आख्या तो सर्वे करके आओ ईसाईयत का प्रचार किदां कीता जा सकता है। उस पादरी ने इथों चिट्ठी लिखी जिहड़ी इंग्लैंड की लाइब्रेरी दे विच अज भी पई है। उस चिट्ठी के बोल सन, वो कहंदा जिन्ना चेर इस पंजाब की धरती ते गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह महाराज वर्गा मसीहा जींदा है ना, उन्ना चेर इस पंजाब की धरती ते ईसाईयत के पैर नहीं लग सकते। ये उस चिट्ठी के बोल सन। पर तुसीं वेखो अज पंजाब की धरती ते धड़ा लोग दूजे मत वाले पासे नूं जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? ये किते ना किते कसूरवार असीं भी हाँ, दोषी असीं भी हाँ। असीं अपने इतिहास नूं साध संगत अजे तक उस तरीके नाल पढ़िया नहीं, समझिया नहीं। साडे नायक ही भुल गए। सानूं तां गुरदास मान चेते रहा, ते जिहड़ा भाई गुरदास
चार चार पाँच पाँच दलीलां गुरमत दियां दे के फिर गुरमत की गल नूं रखदा सी। असीं उस भाई गुरदास नूं भुल बैठे ते उस गुरदास मान नूं याद रखिया जिन्हें आख्या पंजाब दा सभ्याचार यह है भी हत्थ विच शराब की बोतल होवे ते ओहो ही पंजाब दा सभ्याचार है। ते पंजाब जींदा ही इसे करके है। पंजाब दे सभ्याचार दे नां ते सानूं लुटिया गया। पंजाब दे सभ्याचार दे नां ते उन्हां चार चरखे स्टेज ते रखे, चार टुटे मंजे स्टेज ते आख्या ये पंजाब दा सभ्याचार है। सभ्याचार दे नां ते लखां रुपया लुट के इस पंजाब की धरती तो लै गए, अपने घर उन्होंने भर लै। पर एक किसी ने ये ना दसिया भी पंजाब का सभ्याचार उन्हां रावी दियां छल्लां तो शुरू हुंदा सी जिथे गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह महाराज ने करतारपुर नगर वसाया ते सतलुज दरिया ते सरसा नदी के पानियां तक आउंदा सी जिथे गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह महाराज का पूरा परिवार खिंड जांदा है। ये है पंजाब का सभ्याचार। जे पंजाब का सभ्याचार लभना होवे ते तको एक बार सरहंद दियां नीहां वालू, उत्थों लभेगा पंजाब का सभ्याचार। जे पंजाब का सभ्याचार लभना होवे ते वेखो उस चमकौर की गढ़ी वाल जिथे गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह महाराज जी के वड्डे साहिबजादे शहीदी का जाम पींदे ने। जे पंजाब का सभ्याचार लभना है तो लभो उस तत्ती तवी तो जिथे गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह महाराज जी को शहीद किया गया। ये सी पंजाब का सभ्याचार। ये सभ्याचार कदों का हो गया भी स्टेज ते चार चरखे रख के ते पुराने गड्ढे खड़े करके आखो भी पंजाब का सभ्याचार सी, साढ़े हथों ये चीज़ां खुस गईयां। ये सभ्याचार नहीं सी, ये सानू अगलियां ने भरमाया है। जे इहो पंजाब का सभ्याचार सी ते आप गड्डियां ते चढ़ के स्टेजां क्यों नहीं लाउंदे, आप फिर गड्डियां ते चढ़ के क्यों आउंदे ने। किते ना किते अज असीं अपनी सोच नूं जिहड़ा है वो मानसिक तौर ते गुलाम कर बैठे आ। बड़ा दर्द है। कई बारी बड़ियां ऐसियां चीज़ां ने जिहड़ियां तुहाडे नाल साझीआं करन दा जतन जिहड़ा है वो वार वार करीदा भी असीं अपने इतिहास नूं आप पढ़ सकीए, समझ सकीए, पर असीं अजे तक उतों तक नहीं पहुँचे। काश किते ज्ञानी दित सिंह वर्गे सूरमे अज फिर उठण, सिखां दे विच ऐसी जागृति की लहर आवे, सिखां दे विच वो थां बने साडा, फिर असीं दुनिया नूं अपना सिक्का मजबूत करके दस सकीए भी असीं है की सां। अज असीं किते ना किते अपनी लीडरशिप के हथों वांझे रह गए। तुसीं वेखो अज दिल्ली का मोर्चा लगा, साडे बजुर्ग किदां सड़कों ते रोल रहे हैं। पहलां पोह माघ दियां ठंडां उन्होंने अपने पिंडे ते हंडाइयां, जेठ हाड़ दियां धुप्पां अपने पिंडे ते हंडा रहे हैं। हुण बारिश का मौसम है, वो बेचारे पानी दे विच चल के उन्होंने पैर गल गए, पर कित्थों इंसाफ मिलेगा सानूं। असीं अपने हक्कां प्रति अजे तक सुचेत नहीं हो सके। इस दुख की गल है। जे किते साडे पंजाब की अगवाई सही बंदे के हत्थ में आई होंदी ते अज सानूं ये दिन ना वेखणे पैंदे। मैं अज ही वेख रहा सी फरीदकोट जिले के 15 पिंड ऐसे ने जिन्हां पिंडां दे विच धरती हेठला पानी पीण जोगा नहीं रहा। वो बेचारे बाहरों पानी भर के ते फिर अपना गुजारा करते हैं। पीण वास्ते पानी बाहरों आउंदा है ते बाहरों मुੱਲ ਦਾ पानी खरीद रहे हैं। कॉरपोरेट इदां ही करनगे, पहलां धरती विचला पानी गंधला किया जाएगा, फिर साफ पानी पहाड़ों के विचों लियाण के ते सानूं मुੱਲ वेचिया जाएगा। साढ़े 1 किलो चौलों की कीमत 80 ਜਾਂ 90 रुपए तक है, ਜਿਹੜੇ 4000 लीटर पानी ला के तैयार होंदे ने ते 1 रुपये 20 रुपइयां की बोतल 1 लीटर पानी की सानूं ट्रेन चों मिलती है। तुसीं वेखो साडा मुੱਲ की पाया जा रहा है। 1 किलो चौल 4000 लीटर पानी ला के तैयार होंदे ने ते 20 रुपइयां की सानूं ट्रेन ते बस स्टैंड तो बोतल मिलती है 1 लीटर पानी पीने वास्ते। साडे पानी का कितना कुछ मुੱਲ पाया जा रहा है। जिहड़ा है सी साडा पानी वो भी उन्होंने दूजियां थावां ते दे दिता। बड़े ऐसे दुख के पक्ष ने जिन्हां वल सानूं सारिआं नूं ध्यान देण दी लोड़ है। आओ सिर जोड़ के बैठिए। जिदन सिर जोड़ के बैठ गए, जिदन असी सारे एक हो गए, जिदन इन्हां राजनीतिक पार्टियां दी चुंगल दे विचों बाहर आ गए ते असी आख्या असी अपने पंजाब नूं बचाउण वास्ते तहैया करांगे। कोई भी दुनिया की ऐसी ताकत नहीं जिहड़ी साडे इस एके नूं रोक के इस पंजाब की धरती ते खलल पा सके। आओ इकट्ठे होइए, आप सतगुरु की बाणी पढ़िए, आप इतिहास नूं जिहड़ा है वो समझण दा यतन करिए। समा समाप्त है। होइयां भुल्लां चुकां दी खिमा, वडियाई गुरु दी। जे कोई बोल माड़ा लगा होवे गुरु की हजूरी विच गुरु की संगत बख्शण योग है जी, बख्श लेना। होइयां भुल्लां चुकां दी खिमा। अंत विच बुलाओ फतेह गज के आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।